Hello students, we were discussing the similarity of triangles. The three criteria for similarity of triangles are the angle criteria, in which if the two triangles have all the three angles equal, then the two triangles are similar. We can also write it as angle similarity instead of writing angle three times. Why? Because when two angles will be equal, automatically the third angle will also be equal. The second criteria for the similarity of triangle is the side criteria, in which if all the three sides are in same ratio, are proportional to each other, that is in the same ratio, then the triangles are similar. Why? Because when the sides are proportional, then the angles will be equal and hence the triangle will be similar. The third criteria is the side criteria. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the two sides which are enclosing that particular angle are proportional, then the two triangles are similar. So on the basis of this, there are few examples given. You will study these examples. If you have any doubt in any of the example, just write down in the comment section. So now let's come to exercise 6.3. In this video, I am going to explain you exercise 6.3. So the first question is, state which pair of the triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So now, in the first part, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. So what you will write? Triangle A, B, C is similar to triangle PQR. This is the symbolic form where you write the corresponding angle, because angle A is equal to angle P. You cannot write ABC is similar to RQP. You have to write triangle ABC is similar to triangle PQR by angle criteria. Why? Because all the three angles are equal, and hence the sides, which sides will be in equal ratio? AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR. These sides will be in equal ratio. Now let's come to second part. The side AB is equal to 2 unit and side QR is equal to 4 unit. So you can write AB upon QR is equal to, see, AC is 3 unit and PQ is of 6 unit. So AC upon AB upon QP. Do not write PQ because आप A की place पर already Q use कर चुके हो. Now you cannot correspond A to P. So AC upon QP is equal to, now BC is of length 2.5. So BC upon, the B was corresponding to R. So BC upon RP. And hence the triangle ABC is similar to triangle QRP by side criteria. Why? Because all the three sides are in equal ratio. Let's come to third part. In the third part, let's consider MP is equal to 2 सेंटीमीटर. सो अगर आपको इक्वल प्रोपोर्शन दिखाना है तो आप कोई मल्टीपल इसका चूज़ कर लो, या मल्टीपल भी कोई भी नंबर ले लो. अगर आपने साइड ली डी तो वो 2/4 होगा. अगर अब मैं कंसिडर करती हूँ ML,
या फिर PL ले लो, PL3 है, आपने MP को यूज़ किया MP अपॉन DE राइट करके। सपोज आपने लिया MP अपॉन DE, यानी कि आप M को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हो D से और P को E से। सो अगर मैं यूज़ करती हूँ PL, तो मुझे P की जगह तो E वाली साइड यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो PL अपॉन EF हो जाएगा, यानी कि L कॉरस्पॉन्ड कर रहा है F को, और LP के लिए क्या हो जाएगा, LP अपॉन FD, FE होगा बल्कि। देखो MP अपॉन DE लिखा, यानी कि M कॉरस्पॉन्ड कर रहा है D को, P कॉरस्पॉन्ड कर रहा है E को। तो अगर मैं यूज़ कर रही हूँ PL, तो P तो E को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, L बचा था उसके लिए हमने लिख दिया F, यानी कि अब L कॉरस्पॉन्ड करेगा F को और P कॉरस्पॉन्ड करेगा E को। तो LP अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, FE। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये रेशोज इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि जो दो आपके ट्राइंगल्स गिवन है वो सिमिलर नहीं है। लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। इन दिस angle M is equal to 70 degree, angle Q is equal to 70 degree. So angle M is equal to angle Q है, and now the side MN is 2.5 and PQ is MN is 2.5। देखो M कॉरस्पॉन्ड कर रहा है Q को, तो आप MN को अगर कंपेयर करोगे तो आप PQ की जगह क्या लिखोगे, QP लिखोगे आप, ठीक है। ऐसे अगर आप ML को यूज़ करोगे तो ML की जगह आप क्या लिखोगे, Q, क्योंकि M की जगह आपने Q लिखा है, और L की जगह क्या लिखोगे, R। तो आप रेशो चेक कर लो, ML अपॉन QP कितना होगा, 2.5 अपॉन 5, और ML कितना होगा 5 अपॉन 10। दोनों का रेशो आपका आएगा 1/2। अब एक तो एंगल इक्वल हो गया और दो साइड्स का रेशो, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिखोगे आप, ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल, M को आपने किससे कॉरस्पॉन्ड किया था, Q से, तो सिमिलर टू ट्राइंगल QPR बाय साइड एंगल साइड। Let's come to fifth part. In the fifth part it is given the two triangles ABC and let's say DEF. So angle A is equal to 80 degree and angle F is also equal to 80 degree। यानी कि आप अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो A, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा एंगल F, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F हो गया। अगर मैं साइड लिख रही हूँ AB, तो अपॉन A की जगह तो मुझे F लिखना होगा, B की जगह मेरी चॉइस है मैं क्या पुट करती हूँ। रेशो इक्वल करने के लिए हम चेक कर लेते हैं। देखो अब लेकिन ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, बिकॉज साइड्स एनक्लोज नहीं है। दो आपको साइड का लेंथ गिवन है और एक एंगल, तो सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बचता है, साइड एंगल साइड, लेकिन उसके लिए आपकी जो साइड होती है वो एनक्लोज करना चाहिए उस पर्टिकुलर एंगल को जो इक्वल है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लेट्स कम टू सिक्स्थ पार्ट। इन दिस एंगल D, एंगल E आपको 80 डिग्री गिवन है, एंगल D आपको 70 डिग्री गिवन है। एंगल F सॉल्व करने पर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस sum of angle 70 degree and 80 degree. The sum of angle 70 degree and 80 degree is 150 degree, and when you subtract it from 180 degree you will get angle F equal to 30 degree. And similarly in this next triangle you will get angle P equal to 70 degree. So now angle D is equal to angle P, angle E is equal to angle Q, angle F is equal to angle R. So the triangle DEF, नेमिंग हमेशा ध्यान से करना, is similar to triangle PQR by angle criteria. Now let's come to second question. In figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. You have to find angle DOC, angle DCO and angle OAB.
B. You have to find these three angles. You are provided with triangle ODC is similar to triangle OBA. जैसे आपको पता चला that triangle ODC is similar to triangle OBA, तो यानी कि एंगल O तो दोनों में कॉमन हो गया, एंगल D इक्वल होगा एंगल B के और एंगल C इक्वल होगा एंगल A के। अब एंगल COB आपको गिवन है 125 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल DOC फाइंड करना है आपको। तो देखो एंगल DOC के लिए आप क्या करोगे, एंगल DOC प्लस एंगल COB will be equal to 180 degree. Why? Because DOB is a straight line. So from here you will get angle DOC equal to 180 degree minus 125 degree, which will be equal to 55 degree. So अब आपके पास एंगल DOC तो आ गया। अब नेक्स्ट एंगल यू हैव टू फाइंड इज एंगल DCO। अब देखो इन ट्राइंगल DOC, अगर आपने ट्राइंगल DOC कंसिडर करा है तो एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब नाउ DOC आपने फाइंड ऑलरेडी कर लिया 55 डिग्री। अब एंगल CDO आपको गिवन है 70 डिग्री। तो अब आप दो एंगल्स की वैल्यू पुट करोगे और थर्ड एंगल जो है आपका DCO से आप फाइंड कर लोगे। तो एंगल DCO विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द सम ऑफ एंगल 70 डिग्री 55 डिग्री। आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे, यू विल गेट 125 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, 55 degree. So angle DCO will be equal to 55 degree. Now you have to find angle OAB. To find angle OAB, देखो आपको given है that triangle ODC is similar to triangle OBA. यानी कि इसका मतलब एंगल OCD विल बी इक्वल टू एंगल OAB। देखो O कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, O के लिए ही कॉमन था, C कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था A को, इसलिए हमने लिखा OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इक्वल रेशियो में एक दूसरे को कट करती है, साइड्स इक्वल रेशियो में होती है दोनों ट्राइंगल्स की। अब OCD विल बी इक्वल टू OAB। तो अब आपको OCD गिवन था, OCD एंगल कितना गिवन है, OCD आपका 55 डिग्री था। OCD लिख लो या फिर DCO लिख लो, बात तो एक ही, आपने DCO फाइंड करा था 55 डिग्री, वही OCD की वैल्यू होगी एंड हेंस OAB विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री। सो आपको तीनों एंगल्स मिल गए। That is what you were asked to do in the question. Now let's come to question number 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Using the similarity criteria for two triangles show that OA upon OC is equals to OB upon OD. आपको क्या बोला गया है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD trapezium है such that AB is parallel to DC and now the diagonals intersect each other at point O. Using similarity criteria you have to show OA upon OC is equal to OB upon OD. So what you will do, you will consider triangle DOC and triangle BOA। इन दो ट्राइंगल को आपने कंसिडर करा। अब इसमें एंगल CDO विल बी इक्वल टू एंगल ABO। वाई? ऑल्टरनेट एंगल।
because AB is parallel to CD. Now the other point you can write is angle DCO is equal to angle BAO. This is also equal by alternate angle. DCO is equal to BAO, and angle DOC is equal to angle AOB. BOA बेटर राइट, क्योंकि आप देखो कौन कौन से एंगल इक्वल हुए। आपने ट्रेपीजियम कंसिडर करा, इसको नेमिंग करी ABCD, इट्स डायगोनल्स आर मीटिंग एट O, AB इज पैरेलल टू DC, एंड ट्राइंगल कंसिडर करा आपने DOC एंड ट्राइंगल BOA। D कॉरेस्पॉन्ड करेगा B को, O आपका बीच में होगा, और एक C कॉरेस्पॉन्ड करेगा A को। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, alternate angle. Angle DCO will be equal to angle BAO. This is also equal by the criteria of alternate angle because AB is parallel to CD. And angle DOC will be equal to angle BOA, vertically opposite angle. So the two triangles, triangle DOC will be similar to triangle BOA by the angle criteria. अब जब तक दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल, सो DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA। अब आप जब इसे रीअरेंज करोगे तो यू कैन राइट AO, OA को आप AO भी लिख सकते हो, अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। जस्ट आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हेंस आपका प्रूव हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर 6.36 QR upon QS is equal to QT upon QR and angle 1 is equal to angle 2. You have to show that triangle PQS is similar to triangle TQR. So आप कंसिडर करोगे कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। सबसे पहले PQR को लो। देखो आपको गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अगर आपने कंसिडर करा है ट्राइंगल PQR तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, सो PQ इज इक्वल टू PR। वाई? बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आपको गिवन था QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अब आप इसे यूज करके लिख सकते हो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। वाई? बिकॉज PR इज इक्वल्स टू PQ। भी आपने ऊपर से प्रूफ करा। अब आ जाओ ट्राइंगल PQS पे और ट्राइंगल TQR पे। इन ट्राइंगल्स में QR अपॉन QS इज इक्वल टू है QT अपॉन QP के, तो यानी कि साइड्स का रेशियो सेम हो गया यहाँ पर, और एंगल Q दोनों में कॉमन है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड, एंगल, साइड, बिकॉज दो साइड्स और उसके बीच का एनक्लोज्ड एंगल इक्वल हो गया। दो साइड्स तो आपकी इक्वल रेशियो में हो गई और उसके बीच का enclosed angle equal है, hence the two triangles are similar by side angle side criteria।
Let's come to question number 5th. S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. देखो S और T पॉइंट्स हैं PR और QR पे ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब एक ट्राइंगल है, इसको आपने अगर नेमिंग करिए तो आप इसे क्या लिखोगे, ट्राइंगल PQR, और इस पे S और T जो पॉइंट है वो साइड PR पे और QR पे रेस्पेक्टिवली है, यानी कि PR पे S है और QR पे T है। सच दैट एंगल RTS, अगर आपको RTS शो करना है तो आपको TS को ज्वाइन करना होगा। एंगल RTS इज इक्वल टू क्या है, एंगल P, यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। You have to show that triangle RPQ is similar to triangle RTS। ठीक है, अब आपने कंसिडर करा ट्राइंगल RPQ और ट्राइंगल RST। एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल QPS। एंगल R दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, PQR में भी आ रहा है, सॉरी RPQ में भी आ रहा है एंगल P, और RST में भी आ रहा है एंगल R, सॉरी RTS में भी, RPQ में भी आ रहा है एंगल R और RST में भी आ रहा है एंगल R, तो ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, और RTS इज इक्वल टू QPS है, ये आपको गिवन है। जब दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट में साइड इक्वल हो जाती है, सिमिलर में वो इक्वल रेशियो में रहती है। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। देखो आपको गिवन है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो यू कैन से AB इक्वल टू AC बाय CPCT। CPCT से AB इज इक्वल टू AC हो गया। वाई? बिकॉज ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ऑल्सो AD is equal to AE, this is also by CPCT। अब आपने कंसिडर करना है ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसे ही आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन आई थी और ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो आपको बोला गया था प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ADE और ABC। तो अब AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC आ गया, यानी कि साइड्स तो प्रोपोर्शन हो गए और एंगल A दोनों में कॉमन है, यानी कि अब टू साइड्स और उसके बीच का इनक्लोज्ड एंगल इक्वल हो गया। तो अब जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that. You have to show that triangle AEP is similar to triangle CDP. देखो अगर आप कंसिडर करते हो ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP, इन दो ट्राइंगल वाला कंसिडर करते हो तो एंगल AEP is equal to angle CDP. Why? Because both are of 90 degree. Okay, और एंगल APE is equal to angle CPDA
PE is equals to CPD vertically opposite angle. So now two angles are equal, third angle automatically equal होगा, hence the triangle are similar by angle criteria. For the second part you have to prove that triangle ABD is similar to triangle CBE. आपने इन्हीं दो triangles को consider करना है. इसमें angle ADB is equal to angle CEB. Both are of 90 degree. CEB is also of 90 degree and ADB is also of 90 degree. Angle ABD is equal to angle CBE. एंगल B इक्वल टू एंगल B लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ना लिखकर. दोनों एंगल क्या है? कॉमन. दो एंगल्स आपकी इक्वल हो गए, थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. सो द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड CBE आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया. थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. AEP को आपको यूज़ करना है और ADB को यूज़ करना है. अच्छा, AEP और ADB को अगर आप कंसिडर करते हो तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. एंगल A अब दोनों में कॉमन है, AEP में भी आ रहा है ये एंगल और ADB में भी आ रहा है. दोनों केसेस में सेम लाइन सेगमेंट के बीच में एनक्लोज्ड है. तो एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DABY बिकॉज इट इज कॉमन. अब when two angles are equal, the third angle will naturally be equal. So you can say the triangle AEP is similar to triangle ADB by angle criteria. Let's come to the fourth part. You have to prove that triangle PDC is similar to triangle BEC. अब PDC को कंसिडर करा गया और BEC को, तो एंगल PDC is equal to angle BEC. Why? Because both are of 90 डिग्री. ठीक है. अब उसके बाद जो एंगल PCD है वो आपका PDC ट्राइंगल में भी है और वही आपका BEC में भी है. तो एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BEC. Why? Because it is common to both the triangles and hence the triangles are similar by angle criteria. Practice questions till here. Whatever doubt you have, just post down in the comment section.